morning, students. Our today's topic will be conditionals. Okay, so let's see what the conditionals are. So conditionals are the statement that describes non-factors or hypothetical situation along with their consequences. So let's see what the conditional sentences are. Basically, conditional sentences are complex sentences. If you have heard the name of complex sentence means it consists of two parts. Complex sentence consists of two parts. One main clause and second one is subordinate clause. Main clause and subordinate clause. So this main clause is known as consequent here in conditionals. Okay, and another will be subordinate clause. Subordinate clause will be known here as an antecedent. Antecedent. Okay, let's see what the difference between main clause or subordinate clause, or you can say consequent or antecedent. So generally the fact is this, the main clause. Okay, the main clause will describes the effect or the result of the condition. Okay, and the subordinate clause, or you can say here if clause, will describe any condition. Okay, so let's get it easier. So main clause and subordinate clause. Okay, and either you can say it if clause as well. Look at the example, simple example. I will I will buy a cycle for you if you get first you get first rank. Okay. Now look at the sentence. I will buy a cycle for you if you get the first rank. So there are two clauses here. There are two clauses. What are these two clauses? I will buy a cycle for you. एक तो ये clause क्या है? And second one is if you get the first rank. If you get the first rank. Main clause means it is a clause which make its sense on its own. It does not depend on any another clause to make its sense. इसका मतलब मेन क्लोज वो क्लोज होता है जो अपना सेंस खुद से ही बनाता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है. अगर आप उसके जस्ट बाद फुल स्टॉप भी लगा दोगे तो भी उसका कंप्लीट सेंस बनेगा. आप नेक्स्ट वाले सेंटेंस को हटा सकते हो. जस्ट यू सी हियर, आई विल बाय अ साइकिल फॉर यू. यू कैन पुट अ फुल स्टॉप हियर. और ये सेंटेंस जो है, ये क्लोज जो है, ये अपने आप में पूरा सेंस बना रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड हियर एज अ मेन क्लोज. ओके बेटा. नेक्स्ट विल बी इफ क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज. इफ क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? इट इज अ क्लोज दैट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लोज टू मेक इट्स सेंस. इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लोज. सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जिसका अपने आप से कुछ सेंस नहीं बनता है. वो सेंस तो बनाता है लेकिन मेन क्लॉज पे डिपेंड रह के सेंस बनाता है. इसीलिए हम इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज. एंड दिस वन इज मेन क्लॉज. Alright. So main clause, again you see, main clause is a clause that makes its own sense. It does not depend on another clause to make its sense. It's known as a main clause. But subordinate clause depends on the main clause to make its sense. Now we can see, I will buy a cycle for you. ये पूरा sentence है, पूरा sense बना रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? Main clause कहेंगे. If you get first rank, now you see, if you keep full stop here, now the sentence is remaining. If you get the first rank, if you get first rank, then क्या? अगर तुम्हारी फर्स्ट रैंक आती है तो क्या क्या होगा? ठीक है. सो हियर दिस इज अ क्लोज व्हिच इज नॉट मेकिंग इट सेंस. इट इज मेकिंग इट सेंस बट इट डिपेंड्स ऑन दिस. तो ये वाला जो क्लोज है, इस पे डिपेंड रह के क्या बना रहा है? सेंस बना रहा है. इसलिए हम इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज. सबऑर्डिनेट क्लोज कह सकते हो या फिर आप इसे कह सकते हो इफ क्लोज. इफ क्लोज का मतलब यहाँ पे इफ आ जाता है. इफ भी आ सकता है, व्हेन भी आ सकता है, कंडीशन को शो करने के लिए
will be called a subordinate clause. Okay, and आपकी बुक में से कहा गया है antecedent clause. Okay, antecedent है तो सही, और इसको बोला गया है consequent. ठीक है, और main clause. तो आपको ये पता होना चाहिए कि main clause क्या होता है और subordinate clause क्या होता है. जो if clause होता है वो क्या होता है. अब जो if clause होता है यहाँ पे इसके 3 नेम्स हो गए, if clause, subordinate clause और you can say antecedent. आप इसको क्या कहोगे, मेन क्लोज और कंसीक्वेंट. ओके, अब देखो बेटा दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इफ क्लोज में और मेन क्लोज में डिफरेंस क्या होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन क्लोज और इफ क्लोज. मेन क्लोज शोज द consequences, result, outcome और effect of the condition. ओके, सारे वर्ड्स का मीनिंग एक ही है कि जो मेन क्लोज है ना वो आपकी कंडीशन का रिजल्ट दिखाता है, उसके आउटकम दिखाता है. ठीक है, उसका रिजल्ट क्या रहा है, उसका इफेक्ट क्या रहा कंडीशन का, वो दिखाता है. ओके, एंड जो इफ क्लोज होता है, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, दैट शोज द कंडीशन. क्या दिखाता है, कंडीशन दिखाता है, शर्त दिखाता है कि आपकी शर्त क्या है. अब देखो समझो इसको. I will buy a cycle for you if you get the first rank. देखो कंडीशन क्या है कि अगर तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई तो. सो दिस इज कंडीशन. कंडीशन का मतलब क्या हो गया, आप क्या कहोगे उसे, जिसमें कंडीशन शो होती है आप उसे कहते हो एंटीसीडेंट. आप ये क्या कहेंगे उसे, एंटीसीडेंट. ओके, if a clause shows the condition it is known as if clause or antecedent. कंडीशन दिखाने वाले को आप कहेंगे एंटीसीडेंट और इफ क्लॉज, और रिजल्ट दिखाने वाले को, रिजल्ट आप कह सकते हो उसका असर क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा उस कंडीशन का. ठीक है, उसका जो इफेक्ट दिखाता है उसे आप कहेंगे कंसीक्वेंट और मेन क्लॉज. देखो ये तो आपकी कंडीशन हो गई, इफ यू गेट फर्स्ट रैंक कंडीशन हो गई. अगर ये कंडीशन कंप्लीट होती है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा. तो अगर आपकी फर्स्ट रैंक आ गई तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, I will buy a cycle for you. तो ये इसका क्या हो गया बेटा, इफेक्ट हो गया है. तो जो इफेक्ट होता है ना, या जो आप उसका रिजल्ट होता है, जो उसका असर होगा, प्रभाव होगा, उसे आप क्या कहेंगे, मेन क्लोज कहेंगे. ऑलराइट, इट्स क्वाइट सिंपल, जस्ट टू सी इट अगेन. कंडीशनल, कंडीशनल्स मीन्स क्या होगा, these are the statements which shows or which describes general facts, okay, or non factors, you can say hypothetical situations with their consequences. Okay, अब इसको इजी वे में लेके देखो कि कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं. क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं which consist of two clause. This is mandatory. Conditionals में आपको हमेशा दो clause मिलेंगे. Okay, which consist of two clause. पहला clause होगा main clause. अब main clause क्या हो गया, it is a sentence या it is a clause that makes its sense on its own. It does not depend on any clause or any sentence to make its sense. मेन नाम इसका मेन हो गया है, इसका मतलब ये अपना सेंस खुद से बनाता है. इसके साथ में जो दूसरा क्लोज है उसको आप हटा भी दोगे तो भी इसका पूरा सेंस बनता है. और दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई कि ये हमेशा क्या होता है, रिजल्ट होता है. उस कंडीशन का क्या होगा, रिजल्ट होगा, उसका इफेक्ट होगा, उसका आउटकम होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आपका मेन क्लोज के बाद आपका क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज. सो सबऑर्डिनेट इज द क्लोज दैट डिपेंड्स ऑन मेन क्लोज टू मेक इट्स सेंस. जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो अपना सेंस कभी भी खुद से नहीं बना सकता. सेंस तो बनाता है लेकिन कैसे बनाता है, मेन क्लोज पे डिपेंड होकर बनाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लोज. ओके, और सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ साथ आप से क्या कह सकते हो, इफ क्लोज भी कह सकते हो. ओके, एंड एंटीसीडेंट. सो एंटीसीडेंट या मेन क्लोज, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लोज या फिर आप कह सकते हैं इफ क्लोज, तीनों एक ही बात होती है. लेकिन अब ये होते क्या है, इफ क्लोज क्या होता है, दैट शोज द कंडीशन. इफ क्लोज क्या दिखाती है, कंडीशन दिखाती है किसी भी काम को करने की, शर्त क्या है, उसकी कंडीशन क्या है. सो इफ आ क्लोज शोज द कंडीशन दैट इज एंटीसीडेंट, इफ क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज. आप तीनों में से एक नाम बता सकते हो. और मेन क्लोज आपको पता ही है खुद से अपना सेंस बनाता है और जो हमेशा क्या दिखाता है, उस कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा वो रिजल्ट आपको दिखाता है. होपफुली यू हैव गॉट इट.
close and subject close. So that is basically complex sentence. Now we will see the types of conditionals. We see types of conditionals. Conditionals की हम types देखेंगे अब कि किस तरह से types हम करेंगे. First of all, we are going to study about zero conditionals. Zero conditionals. Zero conditionals क्या होते हैं? Zero conditional. Now what is zero conditional? Beta, these are the conditional which shows you general facts, scientific facts और universal truths. ओके, ये ऐसे कंडीशनल होते हैं जो हमेशा परमानेंटली एक फैक्ट होते हैं, एक सच्चाई होती है, आप उसे हम चेंज नहीं कर सकते. इट इज ट्रू फॉर एवर, ये हमेशा के लिए सच्चाई होती है, आपसे कभी चेंज नहीं कर सकते हो. सो यू कैन से इट इज अ जनरल फैक्ट्स और साइंटिफिक फैक्ट. एक ऐसी सच्चाई होती है जो पास्ट में भी हुई थी, प्रेजेंट में भी हुई है और फ्यूचर में भी क्या रहेगी, सेम रहेगी. सो दिस fact is represented by zero conditional. Okay, now we see the structure of zero conditional. Zero conditional बनाने का structure क्या होता है, हमें क्या structure follow करना है zero conditional बनाने के लिए. Let's see this. So first of all, for zero conditional, you can write if, then after if you have to write the subject, then your verb is simple present tense. In present tense, just remember you need to write your present tense. Okay, after this is your if clause. If clause बन गया ये आपका, and if object is there, just write down object. अब एक बात ध्यान रखना, if you are writing if clause before main clause, अगर आप if clause main clause से पहले लिख रहे हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि उसके जस्ट बाद आपको कोमा लगाना पड़ेगा. ठीक है, और अगर आप मेन क्लोज पहले लिख रहे हो और इफ क्लोज मेन क्लोज के बाद लिख रहे हो तो आपको कोमा लगाने की जरूरत नहीं होती है. तो फर्स्ट वी आर राइटिंग द इफ क्लोज मींस दैट वी हैव टू पुट हियर कोमा. ओके, इसके बाद हमें मेन क्लोज लिखना है यहाँ पे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर जीरो कंडीशनल. जस्ट रिमेंबर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वर्ब किसमें होगी, प्रेजेंट टेंस में होगी, ये ध्यान रखना. उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट. अब आपका मेन क्लोज आएगा यहाँ पे. मेन क्लोज में आपको डालना है सब्जेक्ट और वर्ब. वर्ब कौन सी टेंस में आएगी, प्रेजेंट में. ध्यान रखना. What you need to write in present tense. Okay, and then you have to write the object. Now see how quite simple it is. Okay, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना. दोनों ही यहाँ पे आपको कौन सा यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है. जैसा कि हमारी डेफिनेशन है जीरो कंडीशनल के लिए कि ये जनरल और साइंटिफिक फैक्ट्स दिखाती है जो पास्ट में भी हुई थी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी. ये परमानेंट फैक्ट होता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो कंडीशनल. सो फर्स्ट सी द एग्जांपल. जीरो कंडीशनल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं. लाइक इफ इट रेन्स, please get help us. Please get help. Okay, now if it is these get healthier. It's fact कि आप चेंज कर सकते हो इसे. पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही, फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा. बारिश होगी तो जो ट्रीज है वो ज्यादा हेल्थियर होंगे, ज्यादा हरियाली होगी वहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज फैक्ट. लुक एट दैट अदर एग्जांपल. ओके, आप यहाँ पे हमने इफ क्लोज पहले लिखा है. नाउ वी आर राइटिंग मेन क्लोज फर्स्ट. सो इफ क्लोज अगर आप पहले लिख रहे हो तो आपको कोमा लगाना है. इफ यू आर राइटिंग मेन क्लोज फर्स्ट देन यू नीड नॉट टू यूज कोमा. ओके, water freezes. Water freezes if
if you take it at 0 degree Celsius. अब देखना क्या यहाँ पे water freezes, ये मेन क्लोज है आपका, water जम जाता है, इसको किसी की जरूरत नहीं है. Okay, water freezes if you take it at 0 degree Celsius. ये आपका if क्लोज होता है, ठीक है. तो आपने if क्लोज बाद में लिखा है तो आपको यहाँ पे कोमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है. Okay, now you see ये फैक्ट है या नहीं है. अगर आप वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे लेकर जाओगे तो क्या होगा, वाटर फ्रीज हो जाएगा, वाटर जम जाएगा. ये कंडीशन हर जगह लागू होगी. पास्ट में भी ऐसा ही था, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी ऐसा ही होने वाला है. तो ये क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया जिसे हम चेंज नहीं कर सकते. ओके, सो दिस सेंटेंस वी विल मेक इन 0 कंडीशनल. तो 0 कंडीशनल में वो फैक्ट्स, वो साइंटिफिक फैक्ट्स, वो जनरल फैक्ट जिसे आप हम चेंज नहीं कर सकते हैं. और अगर आपको इफ लाना है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ही क्लॉजेज में आप क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऑलराइट, नाउ वी विल सी फर्स्ट कंडीशन. Okay, first condition. This is very important, and I have seen often the students committing mistake in this condition. Okay, first condition. आपका first conditional यहाँ पे आ रहा है. So what is first conditional? In this condition is there. Okay, means if clause will represent a real condition there, and the main clause will represent the consequences of the condition. Okay, तो यहाँ पे आपको एक real condition मिलेगी और उस condition का क्या consequences होगा, उस condition का क्या result होगा, वो आपको main clause में मिलेगा. Alright, let's see this. So आप इसको कैसे represent करते हो ये देखना. So if you are going to write to if clause first, देखो दोनों ही condition में सही होता है. main clause भी आप पहले लिख सकते हो और जो if clause होता है वो भी आप पहले लिख सकते हो. If you are going to start with main clause, you can start it with main clause as well. So अगर हम main clause से start पहले करते हैं तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले subject. Okay, next next V1, after this object. Okay, this just you need to remember, or you have to means learn all the structures of conditionals. These are extremely important to form correct conditional sentences. All right, so first of all we are going to write main clause. So main clause की structure तो ये हो गया यहाँ पे, subject plus main plus V1 plus object. Now we are writing if clause. अब if clause में हम क्या लिखेंगे, if clause अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे फिर if. Okay, after if you need to write subject. After this you need to write V1 means simple present tense. कौन सा लिखेंगे आप, simple present tense. ये हमेशा ध्यान रखना, simple present tense. subject के बाद आपकी जो वर्ब होगी वो simple present में होगी और उसके बाद आपको लिखना होता है object. Okay, अब देखो mistake हम क्या करते हैं. This is extremely important. We use this in daily communication as well. बहुत बार हम यूज करते हैं इसको. ठीक है, तो अब इसमें हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम दोनों में ही will यूज करते हैं. if क्लोज में भी हम will यूज कर लेते हैं और जो मेन क्लोज होता है वहाँ पे भी हम क्या यूज करते हैं, will यूज करते हैं. बट दिस इज रॉन्ग. if क्लोज में आपको कौन सा टेंस यूज करना होता है, सिंपल प्रेजेंट, और मेन क्लोज में आपको यूज करना होता है will प्लस V1. ठीक है बेटा, तो अब देखना, अब इस सेंटेंस को आप कैसे भी बना सकते हो. अगर मैं तुम्हें कहूँ या तुम्हारे पेरेंट्स जो भी तुम्हें कहते हैं कि आई विल प्ले विद यू, आई विल प्ले विद यू इफ यू हेल्प मी इन माय टास्क. ठीक है, अब देखो इसे, आई विल प्ले विद यू इफ यू हेल्प मी इन माय टास्क. I will play with you if you help me. Right? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो मेन क्लोज कौन सा है. As you can see, मेन क्लोज क्या है, जहाँ पे if नहीं लग रहा वो मेन क्लोज है. So I will play with you. पूरा सेंटेंस है, पूरा सेंस बना रहा है तो ये मेन
फुल स्टॉप लगा देंगे, दिस इज कॉल्ड मेन क्लॉज। और ये आपका क्या हो गया, इफ क्लॉज। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कोमा लगाना है। कोमा कहाँ लगाते हैं कि इफ क्लॉज अगर पहले आता है, इफ क्लॉज इज प्रीसीडेड बाय मेन क्लॉज, देन वी हैव टू यूज कोमा हियर। लेकिन अगर मेन क्लॉज पहले आ रहा है तो आपको कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप स्ट्रक्चर को देखो, आपका स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट will V1 और फिर ये आपका ऑब्जेक्ट। We are following this structure. Main clause का यही structure था। Alright क्या? Now you see the structure of if clause. If clause का structure देखो। if लिखोगे, फिर subject लिखोगे, फिर simple present लिखोगे और फिर आपका object। Isn't it? हमने same structure follow करा है। हम mistake क्या करते हैं? I will play with you if you will help me. Okay, ये मिस्टेक करते हैं। तो आपको यहाँ पे will कभी भी नहीं लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखना। It will be in simple present only. It will be in simple present only. Just remember this. Alright. So अब देखो एक चीज ये भी देखना है कि आपको कंडीशन क्या है। कंडीशन कौन सा दिखा रहा है आपको, ये वाला सेंटेंस कंडीशन दिखा रहा है आपको। इफ यू हेल्प मी इन माय टास्क, कंडीशन क्या है कि अगर तुम मेरी टास्क में हेल्प करते हो, कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, रिजल्ट क्या होंगे, आई विल प्ले विद यू। उसका इफेक्ट क्या होगा, अगर तुम हेल्प करते हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो जो इफेक्ट दिखाता है वो मेन क्लोज हो गया, जो कंडीशन दिखाता है वो आपका इफ क्लोज हो गया है। Yes, it's clear. One more example you can say of first condition. First condition का आप एक example और देख सकते हो कि देखो हमने if clause पहले लिया है। Okay, if I go to Jaipur, I तो short में लिख सकते हो, contrast में full form में लिख सकते हो। Okay, now you see, if I go to Jaipur, I will buy a gift for you. Now you see, कंडीशन क्या है कि अगर मैं जयपुर जाता हूँ, कंडीशन हो गई, अगर मैं जयपुर जाता हूँ तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा, आई विल बाय अ गिफ्ट फॉर यू। तो मैं तुम्हारे लिए क्या खरीदूंगा, एक गिफ्ट खरीदूंगा। अब आप देख सकते हो कि ये रिजल्ट बता रहा है, मतलब कंडीशन का क्या कंसीक्वेंस होगा, मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका असर क्या होगा। जैसे बता रहा है, कंसीक्वेंस बता रहा है, तो ये क्या हो गया आपका मेन क्लॉज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे if आ गया आपका, ये आपका कौन सा हो गया, if क्लॉज हो गया। ठीक है, ये सब मेन क्लॉज हो गया। एंटीसीडेंट में कैसे क्लॉज है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन क्लॉज और इफ क्लॉज। इफ क्लॉज और मेन क्लॉज में आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पे इफ लगाना है और किस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करना है, क्योंकि इफ वाला जो स्ट्रक्चर है वो ही आपको करेक्ट फिट करना होता है। तो अगर इफ आ रहा है तो इफ के साथ फर्स्ट, अगर कंडीशन कंडीशनल है तो फर्स्ट कंडीशनल में आप इफ के साथ क्या यूज करोगे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ के साथ आप क्या यूज करने वाले हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, और जो मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज में आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर फर्स्ट कंडीशनल। ये फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर था। नाउ वी विल सी सेकंड कंडीशनल। अब हम सेकंड कंडीशनल लिखने वाले हैं। What is second conditional? Good. So second conditional is means this conditional is represented or it represent a hypothetical situation. Okay, this conditional represents hypothetical situation or hypothetical condition. Okay, and its consequences. अब देखो hypothetical मतलब imagination। ठीक है, सिर्फ तुम क्या करते हो, इमेजिनेशन करते हो, और ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा होता तो, सिर्फ ये तुम्हारी इमेजिनेशन में चलता है।
क्लोज पहले लिखना चाहते हो, इफ क्लोज, या फिर आप मेन क्लोज से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। सो वी आर स्टार्टिंग विद इफ क्लोज नाउ। सबसे पहले आप लिखते हो इफ के बाद आपका आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका आता है सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा आएगा? सिंपल पास्ट टेंस। हमने वहां पे फर्स्ट कंडीशनल में हमने यूज करा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, और अब हम सेकंड कंडीशनल में यूज कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। दिस कंडीशनल इज यूज्ड टू represent hypothetical situation or imagination. Okay, so if plus subject plus simple past, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे simple past लगाना है आपको। And next we have to use here object। अब आपने if क्लोज पहले लगाया है तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे? comma। You have to use here comma as well। Next you have to write here subject। अब आपका main क्लोज का प्रोसेस चालू हो गया है यहाँ पे। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे इनकी जगह यहाँ पे और देन के बाद राइट V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, सो इफ यू कैन रिकॉल द थिंग्स, इफ यू कैन रिमेंबर, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट कंडीशनल में सिंपल प्रेजेंट यूज होता है और सेकंड कंडीशनल में सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। फर्स्ट कंडीशनल में विल यूज होता है मेन क्लोज में, और लेकिन पास्ट कंडीशनल सेकंड कंडीशनल में आपको विल की जगह क्या यूज करोगे? वुड। दो ही वर्ड्स आपको रिप्लेस करने हैं कि सिंपल प्रेजेंट की जगह सिंपल पास्ट और विल की जगह वुड यूज करना है। एंड दिस रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ओके, अगर कुछ भी आप इमेजिन करते हो कि काश ऐसा होता, वह ये होता या वो ये होता, ओके, तो ऐसा होता, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि if I were a prime minister, if I were a prime minister, ये सेंटेंसेस आपने बहुत जगह देखे होंगे। अब आपको समझ में आएगा कि हम आई के साथ वर्क क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी है, जो कि कंप्लीट नहीं हो सकती। जो क्या दिखाती है, अगर रोज लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रोज कभी भी करेक्ट नहीं होगा या फिर रॉन्ग होगा। ये रोज मतलब सिंपल पास्ट में तो जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं दिखाता कि इमेजिनेशन है। वर आते ही हमें ये दिखाता है कि ये क्या है? इमेजिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। ये सच्चाई नहीं है, ये कभी भी फैक्ट नहीं होगा। ये सच्चाई नहीं है, ये सच नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में। फ्यूचर में हो सकता है कभी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये फैक्ट नहीं है, ये सच नहीं है। तो इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, हमने इफ क्लोज पहले लगाया तो कॉमा लगाएंगे। आई वुड चेंज द रूल्स। I would change the rules. Now you see, if I were a prime minister, I would change the rules। सबसे पहले ये देखो कि हमने करेक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करा है कि नहीं करा है। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। सबसे पहले if लिखना है, आफ्टर दिस सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस लिखना है, और आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। if क्लोज का स्ट्रक्चर पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं हम, isn't it? नाउ देखो मेन क्लोज का स्ट्रक्चर क्या हमने फॉलो करा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वुड लिखना है, उसके बाद V1 लिखनी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। मींस वी आर फॉलोइंग द स्ट्रक्चर इन बोथ द क्लोजेस। हमने दोनों ही क्लोजेस में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करा है? सिंपल सिंपल पास्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल पास्ट यूज करा है, और यहाँ पे हमने विल की जगह क्या यूज करा है? वो यूज करना है। तो एक बार दोबारा से स्ट्रक्चर पे ध्यान देना प्लीज। आपको स्ट्रक्चर अगर याद है सारे कंडीशनल्स के, तो आप हमेशा सेंटेंस को सही बनाओगे। अगर इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यू नीड टू राइट दिस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट सबसे पहले, अगर आप इफ क्लोज लिखते हैं तो सबसे पहले इफ, आफ्टर दिस सब्जेक्ट, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस, फिर आपका ऑब्जेक्ट। मेन क्लोज में आएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका आएगा वुड, वुड के बाद आएगी V1, और V1 के बाद आपका ऑब्जेक्ट। सो दैट वाज सेकंड कंडीशनल। कौन सा कंडीशनल था ये? सेकंड कंडीशनल। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द थर्ड कंडीशनल। कौन सा कंडीशनल देखने वाले हैं हम अभी? थर्ड कंडीशनल देखने वाले हैं। दिस इज द लास्ट कंडीशनल। बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, फोर टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस हम करने वाले हैं। तो हमने कर दिए, जीरो कंडीशनल से हमने स्टार्ट किया था, तो अब फोर्थ वाला कौन से पे आएगा? थर्ड कंडीशनल पे आएगा। सो दिस इज थर्ड
लुक एट द स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं और लाइन बताना कैसे हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करेंगे, अगर आपको एक क्लोज लिखना है तो सबसे पहले आप एक क्लोज भी लिख सकते हो, तो अगर आप एक क्लोज पहले लिख रहे हो तो ये ठीक है। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप लिखेंगे हेड, हेड के जस्ट बाद आप लिखेंगे V3 या आप इसे कह सकते हो पास्ट पार्टिसिपल। V3 इज नॉन एज पास्ट पार्टिसिपल, तो V3 लिख लो या फिर आप पास्ट पार्टिसिपल लिख लो, दोनों ही सही है। उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आप कॉमा लगाएंगे क्योंकि आपने इफ से स्टार्ट किया है। आफ्टर दिस यू हैव राइट योर मेन क्लोज, मेन क्लोज अब आपको लिखना है, तो मेन क्लोज में आप क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे वुड हैव लिखेंगे, यहाँ पे ये ध्यान देखना वुड हैव, ठीक है। और हैव आ गया तो यहाँ पे डेफिनेटली कंफर्म आएगी और थर्ड फॉर्म में जस्ट बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। अब ये कंडीशनल हम क्यों यूज करते हैं ये देखना पहले। व्हाई डू वी यूज दिस कंडीशनल? This conditional is used for a condition, for a situation which was impossible in the past or which was incomplete in the past due to the condition. ठीक है, ये हमें ये दिखाता है कि उसके जो consequences है, उसके जो result है ना, वो incomplete रह जाते हैं past में। क्यों incomplete रह जाते हैं? क्योंकि जो condition थी ना वो complete नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये हमें ये दिखाता है कि पास्ट में आपने एक ऐसी कंडीशन थी, वो कंडीशन आपने कंप्लीट नहीं हो पाई है या कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसके जो कंसीक्वेंसेस थे वो भी कंप्लीट नहीं हो पाए। तो दिस कंडीशनल represents a situation or the condition or consequences which are impossible, which were impossible in the past. Past में वो क्या थे? Impossible थे। That's why you can see here we have used here past, past, past. इसलिए हमने past tense यूज कर रखा है यहाँ पे consider। तो बस स्ट्रक्चर में ध्यान देना, extremely important। if plus subject plus had plus V3 plus object, ये तो आपका कंडीशनल हो गया, कंडीशनल क्लोज हो गया, ठीक है। यही क्लोज हो गया। मेन क्लोज में आप क्या फॉलो करने वाले हैं? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल। एक एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। If you had worked harder, okay, लगाएंगे comma क्योंकि क्लोज हमने पहले लिखा है। You would have got first rank। ये गाना तुमने कई बार सुना भी होगा, तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा भी होगा। इसका मतलब ये है कि अगर तुम थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो तुम्हारी क्लास में फर्स्ट रैंक आ जाती। अब ये तुम्हें पता है, सिचुएशन समझ में आ रही है कि ये एक ऐसी टास्क थी या एक ऐसा कंडीशन था जो पास्ट में कंप्लीट नहीं हो पाया, जो पास्ट में इम्पॉसिबल था, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, ये हमें ये दिखाता है। तो अब आपका स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था, क्या हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया? सबसे पहले आपका इफ क्लोज का स्ट्रक्चर था। ओके, क्या था? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हो हमने इसी को फॉलो करा है। नेक्स्ट आपका मेन क्लोज का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करा है और ये बेटा एक ऐसी कंडीशन दिखाता है जो पास्ट में इनकम्प्लीट रहेगी। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने पास्ट में अच्छी मेहनत करी होती, या सॉरी, अगर आपने और भी ज़्यादा मेहनत करी होती तो आपकी फर्स्ट रैंक आ जाती। इट मीन्स यू डिडंट वर्क हार्ड एंड यू डिडंट गेट फर्स्ट रैंक। इसका मतलब ना ही तो तुमने हार्ड वर्क किया था और ना ही तुम्हें फर्स्ट रैंक मिली। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है कि कंप्लीट नहीं होता है, यू डिडंट वर्क हार्डर एंड यू डिडंट गेट फर्स्ट रैंक इन द पास्ट। सो ये सेंटेंस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। होपफुली कंडीशनल एक बार दोबारा से हम शॉर्ट में कर लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जिसमें दो पार्ट्स
स्ट्रक्चर क्या होगा कि मेन क्लोज does not depend on any other clause, it makes its own sense. But if clause depends on main clause to make its sense, लेकिन if clause दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है अपना सेंस बनाने के लिए. Basically there are four types of clauses. कितने टाइप्स, सॉरी, कंडीशनल्स. तो there are four types of conditionals. कंडीशनल्स के फोर टाइप होंगे. सबसे पहला टाइप हमने करा था जीरो कंडीशनल. तो जीरो कंडीशनल्स वो रिप्रेजेंट करती है कि ये जनरल फैक्ट्स और साइंटिफिक फैक्ट को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते. मतलब पास्ट में भी वही सच था, प्रेजेंट में भी वही सच है, फ्यूचर में भी सच रहेगा. दिस इज द लॉन्ग लास्टिंग ट्रूथ, कैन नॉट बी चेंज्ड. ओके, तो ये जीरो आप कहेंगे, जीरो कंडीशनल्स के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट करोगे. और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर आप इफ क्लोज लिख रहे हो तो सबसे पहले इफ क्लोज, फिर सब्जेक्ट, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर ऑब्जेक्ट. मेन क्लोज में भी कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट, लाइक सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट. आपने देखा होगा कि दोनों ही क्लोजेस में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करने वाले हो जीरो क्लोज में. नेक्स्ट इज फर्स्ट कंडीशनल. फर्स्ट कंडीशनल क्या दिखाती है आपको, एक रियल कंडीशन आपको दिखाती है और उसके कंसिक्वेंसेस दिखाती है कि आपकी कंडीशन क्या है और उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे. आपको पता है कि जो इफ क्लोज होगा, जो क्लोज आपका इफ क्लोज होगा, कंडीशनल क्लोज जो होगा, उस इफ क्लोज में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है. ध्यान रहे, इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे और जो मेन क्लोज होगा उसमें आप सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करोगे. ऑलराइट, सेकंड पे आते हैं हम. सेकंड कंडीशनल जो होगा, जो थर्ड टाइप है, सेकंड कंडीशनल आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाता है, इमेजिनेशन दिखाता है, इमेजिनरी कंडीशन दिखाता है. उस कंडीशनल में आप क्या यूज करोगे, इफ क्लोज में तो आप यूज करोगे सिंपल पास्ट टेंस और मेन क्लोज में आप यूज करोगे वुड प्लस V1, वुड प्लस V1. नेक्स्ट जो लास्ट फोर्थ पार्ट है वो है जो में उसका कंडीशनल का नाम क्या है, थर्ड कंडीशनल. और उस कंडीशनल में क्या दिखाते हो आप कि a task was there, a condition was there that was incompleted in the past. एक टास्क जो भी था आपने उसको पूरा नहीं करा था, इसलिए वो पास्ट में इम्पॉसिबल रह गया है, इनकम्प्लीट रह गया है. ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसमें इफ क्लोज में तो आप लगाओगे हैड प्लस V3. इफ क्लोज में क्या लगाएंगे, हैड प्लस V3. और आप मेन क्लोज में यहाँ पे लगाओगे वुड हैव प्लस V3, would have plus V3. So beta, these were the types of four conditionals. Hopefully you have understood it. And listen, just go through the book, go through the chapter. Okay, whatever is written there, just read it clearly. And if you have any doubt or regarding this